Good evening, everyone. Welcome to this very special holy episode with Asha Ganga Jamani series. और आज के दिन तो डबल मजा है और डबल ही आज आनंद है क्योंकि ना केवल आज होली है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है और जिसके बारे में लोग बहुत सालों से पूछ रहे हैं कि क्या होली सिर्फ एक हिंदू फेस्टिवल है. It's not just about that. We're looking at today is a very special day. Today is Shabi Barat, and it reminds me of this author, of this poet, Nazir Akbarawadi, who wrote "Jab Fagun Rang Chamakte Ho to Dekh Bahar Holi Ke," and also he's written on Shabi Barat. So I don't know if you all remember this one famous line, "Mulla jo dene फतेहा घर घर में जाते हैं, हलवा कहीं कहीं वो चपाती उड़ाते हैं, मुफलिस कोई बुलावे तो मुंह के छुपाते हैं." So this was wonderful. So I mean, I can't think of any other way to introduce our topic today. It's very important in these times to remind each other and to spread this awareness and understanding that even though in literature, art, and music, Holi is all about Radha Krishna love, and Islam and Holi have, sort of, there is a certain uh, oof there because, and of course there was this surf advertisement that created a huge halla a few years ago. So Islam and Holi have had a historic relationship in India, and it's very important for us to know what that relationship was, and that is the foundation of our syncretic, our composite culture. Holi has been an integral part of Islam for in India for several years, and it has been celebrated as Eid-e-Gulabi during the reign of Mughal emperors like Shah Jahan and Akbar. And don't forget that Shah Jahan was a very conservative Muslim. Now this was also called Abe Pashi, and today we will be talking more about this with Professor Ali Nadeem Rezavi, who you all know is he was earlier the chairperson of CAS at AMU, and he's our mentor. He's been curating the series for us. So we will be discussing, of course, what and how Holi finds a reference in Tuzuke Jahangiri, and how there was how Jahangir used to hold this Mehfil-e Holi, and this whole idea of syncretic culture in India was not just it's not just with let's say the Mughals that this happened. It's been inspired by the Sufi saint of Delhi, Hazrat Nizamuddin Aulia, and of course his disciple Amir Khusro. Now, the colors pink and yellow, of course, are the divine expressions, and in you hear this in Hindavi and Persian poetry, and so Holi and Basant are very integral sort of part of Dargah festivals and celebrations, and of course, there are songs to this, but there's beautiful poetry. Khelungi holi khaja ghar aaye, dhan dhan bhag hamare sajni, khaja aaye angan mere. This is beautiful, and of course, there's also verses by Bulle Shah, and where he talks about the divine love and union in celebration of Holi. So, Hori khelungi keh bismillah. I mean, this is what my India is. This is what the India I understand is. And of course, I've been to the Basant Utsav in Shanti Niketan, which is another sort of, it takes the whole season into consideration. This whole idea of khol dar khol, laglo je dol. So it's the festival of colors is really nothing to do with the religion. It's to do with the seasons. It's to do with the feeling of joy that one feels with the change in the season, and with this beautiful time that the spring season that ushers in. So to discuss this, we have Professor Rezavi, and I'm going to bring him on board. Good evening, sir. गुड इवनिंग। बहुत बहुत मुबारक हो। इतने बहुत सारे त्यौहार इस महीने में। होली की मुबारकबाद सबको। शब बारात भी है
और चीज़ें भी हैं। सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो और उम्मीद करता हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी इन त्योहारों को मिल-जुल के मनाएँगे। जी सर। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो होली है और उसके साथ में हम लोग जो इस्लाम और होली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी अभी हाल-फिलहाल में एक ऐड की वज़ह से और साथ ही साथ काफ़ी सारे हमारे ट्रेडिशनल मुस्लिम्स जो हैं, वो होली को अन-इस्लामिक मानते हैं। ये कितनी हद तक सच है? देखिए मज़हब भी एक कल्चर बेस्ड एक चीज़ होती है और ये त्योहार तो पूरे-पूरे कल्चरल सेलिब्रेशंस ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। अ इस्लाम को मानने वालों के लिए मेरे ख़्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो किसी किस्म का भी त्योहार खुशियों से मनाएँ क्योंकि ये तो इस्लाम का हुक्म है कि आप मिल-जुल के रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उस मुल्क के कल्चर को अपनाएँ, ये भी एक मज़हब का पार्ट है। अ अ, हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में जब से मुस्लिम हुकूमत बनी, you know, although the Muslims started coming from the time of the Prophet himself, चाहे वो कोरोमंडल कोस्ट का एरिया हो, केरला का कोस्ट हो, we know it well that even at the time when the Prophet was alive, Muslim merchants had started coming into the Indian subcontinent from the sea route. और आज भी कहलाती है कि वहाँ के ऊपर एक मस्जिद है जो ओल्डेस्ट है, जो रसूल के पीरियड की बनी हुई है। यहाँ तक के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस एक गुजरात में भी एक मॉस्क दिखाते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीएस्ट मॉस्क, यानी जिस वक़्त काबे की तरफ डायरेक्शन नहीं बनाया गया था बल्कि अभी वही फ़िलिस्तीन की तरफ डायरेक्शन था प्रेयर्स का, उस वक़्त एक मॉस्क यहाँ बनाई गई थी। दैट इज़ हाउ द लेजेंड गोज़ क्योंकि थोड़ा-सा उसका डायमेंशन बदला हुआ है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के इस्लाम और हिंदुस्तान का रिलेशन बहुत पुराना रहा है। हमारे पास हदीसें मौजूद हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने यहाँ के अचार की तारीफ़ की है। तो वो भी यहाँ के बारे में जानते थे। कई अइम्मा गुज़रे हैं, इमाम ऑफ द फैमिली ऑफ अहले बैत, जिनकी मदर्स जो हैं या बीवियाँ जो हैं, दे आर सेड टू बी इंडियंस। करबला की जंग जब होती है, उसमें वी नो के करबला के वाक़े के बाद एक हिंदुओं की एक टोली है, जो ब्राह्मण हैं, जो यज़ीद की फ़ौज से लड़ने जाते हैं, आज वो लोग हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। We also know that when persecution started under the Umayyads, a large number of the Muslims, followers of Islam, started escaping from those atrocities and coming over to India. तो एक बहुत पुराना ताल्लुक रहा है और उसमें एक दूसरे के कल्चर को समझने और उसकी काफ़ी ज़्यादा वो रही है। एक चीज़ मैं और बताऊँ कि जब यहाँ के ऊपर सल्तनत एस्टेब्लिश हुई 1206 में, जो डायनेस्टी जिसने हिंदुस्तान पे तुर्कों की हुकूमत को कायम किया, दे वर नोन एज़ ईलबरी टर्क्स। दे कंसिडर्ड themselves to be pure Turks. इतने प्योर के बहुत से दूसरे तुर्कों को वो कहते थे कि ये तो शेफर्ड्स और गडरिये हैं। मसलन खलजियों के बारे में उनका यही राय थी कि ये तो जाने कौन लोग हैं ये। तो उनको कभी नहीं लेते थे और इसीलिए जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने अपनी प्योरिटी ऑफ रेस को कायम रखते हुए शुरू में सिर्फ तुर्कों को ही हुकूमत का पार्ट बनाया और दूसरों को नहीं बनाया। लेकिन in spite of the fact that they were very proud Turks, वो एक्चुअली पर्शियन इन्फ्लुएंस पे थे, यानी उनका जो पूरा कल्चर था वो
ईरानियों से मुतासिर था और ईरान के कल्चर पे बेस था। मेरे ख्याल में आप में से जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि इन इल्बरी टर्क्स में जो एक सबसे बड़ा बादशाह जो गुजरा, सुल्तान बलबन, उसने एक थ्योरी ऑफ किंगशिप अपनी लाई, जिसमें अपने को, पूरे खानदान को उसने ट्रेस किया एक मिथिकल बादशाह से जो ईरान का था, अफरासियाब। नहीं, बड़ा आसान है ना, अपने को ऐसे खानदान से जोड़ लो जिसका कोई रिश्तेदारी ना मिले जो आपको टोकेगा कि आप क्या हैं। हम सूरजवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, या अफरासे आपके खानदान के हैं, ये भी एक अपने मिथ से जोड़ लिया। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि ईरान कितना जहनों पे इनके कायम था, कि वही के एक जो एक एपिक लिखी गई थी, एक स्टोरी बुक लिखी गई थी, उसी के एक मिथिकल कैरेक्टर से अपने को ट्रेस किया। ये इल्बरी टर्क्स है। जाहिर है इस इन्फ्लुएंस में जब यहाँ आए तो हमें पता चलता है कि शुरू से ही, यानी बिल्कुल अर्ली टर्किश पीरियड से, जिस पर अभी शायद इनका हिंदुओं से बहुत कम कांटेक्ट हुआ था, लेकिन ईरानियन इन्फ्लुएंस था। तो वहां से एक चीज ये लेके आए और वो था नौरोज। यानी मेरे ख्याल में आपको और हमें सबको मालूम है कि जो एरियन ओरिजिन्स हैं हिंदुस्तान के एरियंस के, यानी जो वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड जो कल्चर पूरा डेवलप हुआ, उसका और जिंदावस्ता जो पुराना ईरानी कल्चर है, वो तकरीबन एक है। एक वहां पे एक फेस्टिवल था जो एक तरीके से स्प्रिंग, नए मौसम जो आता था, बाहर का मौसम आता था, जाड़े जा चुके होते थे, फसलें नई उबर रही होती थी, नए पौधे आ रहे होते थे, उस वक्त यानी वो कहलाता था कि उनका ईरानी कैलेंडर जो पहला महीना है फरवरदीन, उसका पहला जो दिन था, उस दिन उसको मनाते थे न्यू ईयर, नौरोज। और उसमें जो एक ये पूरा जो एरियन कल्चर का रहा है, आग जलाते थे, आग के चारों तरफ डांस होता था, आज भी ईरान में होता है, हालांकि अब तो वो इस्लामिक हो गए। और फूल, पौधे, पत्ते, हरियाली, उससे सजावटें होती थी। और ये जो पूरा जो नौरोज का सेलिब्रेशन था, ये मार्च में हुआ करता था, आज भी मार्च में होता है, क्योंकि at the moment when sun enters Aries, the spring equinox जिसे कहते हैं, उस दिन ये त्योहार मनाया जाता था। ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, अगर इससे आप शगुफ्ता आप उसको पैरेलल ड्रॉ करें होली से, तो तकरीबन तकरीबन दोनों प्रोग्राम जो हैं, वो जो 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 फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पे भी फसली फेस्टिवल है, यहाँ पे भी होली के बाद अब जाड़े चले जाते हैं हम लोग, यानी जैसे मेरा जो खानदान है, अपने को हम लोग ईरानी ओरिजिन कहते हैं, तो पहली पहली बार जब हमारे यहाँ मौसम में पंखा चलता है तो वो नौरोज पे चलता है, उससे पहले नहीं चलाते। गर्मी में बैठे रहते, मेरी वालदा थी वो कहती थी नहीं नहीं नौरोज आने दो तब चलेगा। हिंदुओं में भी जो कंसेप्ट है वो ये है कि जितने भी नए बहार का जो होगा वो होली के दहन के बाद होगा। अब ये बिल्कुल तय है कि अगर सर्दी पड़ रही होगी, जो हो रहा होगा, होली जल गई, अब तो गर्मी आ गई। ये दोनों फेस्टिवल्स जो हैं एक्चुअली, ईरान का भी जो फेस्टिवल है जिसके इन्फ्लुएंस में ये यानी बिल्कुल इल्बरी टर्क्स के पीरियड से यहाँ पे ये चीज आई, और ये बड़ी आसानी इसने क्रिएट ये कर दी कि इसी के सहारे बहुत से फेस्टिवल्स जो थे, जो लोकल थे, वो भी इसके साथ जोड़ दिए गए। इससे पहले कि अब आप कुछ और पूछें, मैं एक चीज नौरोज के बारे में ये बता देता हूं कि ईरानी जो कंसेप्ट है नौरोज का, उसमें 7 चीजें जो सीन से शुरू होती हैं, हफ्त सीन उसे ईरान में कहते हैं। शगुफ्ता आपकी आवाज बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो हफ्त सीन के नाम से 7 चीजें हैं, जिसमें सब्जा है, जिसमें संजद है यानी ड्राइड फ्रूट्स हैं,
जिसमें सेब है, दैट इज एप्पल, जिसमें सीर एक यानी गार्लिक समानी एक पकवान होता है जो पुडिंग टाइप की वो ईरान में बनती है, सिरका यानी जो हमारे यहाँ भी उसका इस्तेमाल विनेगर का होता है, और इसी तरह सुमाक एक पर्शियन स्पाइस है। ये 7 चीजें रख के यदि टेबल सजाई जाती थी जिसके ऊपर ये सब होता था, और आग जला के उसके डोरी से उसको चारों तरफ से बांध के और उसके चारों तरफ वो कूद कूद के वो डांस करते थे। आज भी अगर ईरान में भी, जैसे मैंने आपसे शगुफ्ता कहा कि आज भी अगर आप चली जाएंगी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भी जो सेलिब्रेशन हो रहा है नौरोज का, वो उसी अंदाज में हो रहा है। उसमें किया क्या गया है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने पूछा कि इस्लाम में जायज है कि नहीं। तो उसको, क्योंकि ये कल्चरल फेस्टिवल था एक जगह का, जैसे होली हिंदुस्तान का फेस्टिवल है, तो अच्छा एक चीज और याद रखिए कि ईरानी बड़े बहुत बाद में शिया हुए हैं, पहले वो सुन्नी रहे हैं सदियों, सफाविद पीरियड में कहीं जाके वो शिया हुए। तो ये दैट इज नॉट दी अंडर दी शिया इन्फ्लुएंस, दैट वाज द इरानियंस इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान इटसेल्फ, जो वो इस्लाम लाए। अब उन्होंने सोचा कि हम अपने पुराने फेस्टिवल को कैसे इस्लामासाइज कर दें, और उसमें उन्होंने फिर चीजें जोड़नी शुरू कर दी, यहाँ तक के सफाविड्स जब आए, और जब सफाविड्स का आने का मतलब ये था कि अब मजहब को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, जो कट्टरपंथी जैसे हम हिंदुस्तान में आज देख रहे हैं, जो एक तरीके से एक नया ऑफिशियल मजहब, अब इसके अलावा कोई और अलाउड नहीं होगा, बस एक ही लोग रहेंगे, CAA टाइप का हो गया सफाविड ईरान में। लेकिन उस पीरियड में भी जो कल्चर था उसको चेंज नहीं किया उन्होंने। उसमें क्या किया कि नहीं नहीं देखिए, ये जोरो एस्ट्रियन मजहब जरूर है लेकिन इसके इस्लामिक प्रेसिडेंट्स भी हैं। क्या यही वो दिन था जिस दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम गदीर में प्रोफेट ने जो ऐलान अरबिक कैलेंडर के लूनर कैलेंडर के हिसाब से किया था, उसको अगर आप सोलर कैलेंडर में आप अगर कन्वर्ट करें तो यही नौरोज का दिन था जिस दिन हजरत अली को डिक्लेयर किया गया कि वो इमाम थे। तो अब क्योंकि वो पहला दिन था हजरत अली की इमामत का, चौथे खलीफा हैं सुन्नियों के और पहले खलीफा हैं इमाम हैं शियों के, तो अब ये दिन बड़ा मुबारक हो गया, अब हम इसे मनाएंगे। यानी उसमें उन्होंने जवाज ढूंढ लिया, और उसको, और इतना हो गया कि आज के तारीख में या जो मिडिवल पीरियड में भी जिस वक्त ये इलबरी टर्क्स या दूसरों ने जो यहाँ पे उसको इंपोर्ट किया, उस वक्त तक ये बहुत सेकुलर एक तरीके से फेस्टिवल उभर के सामने आया था। आपने अभी मुझे अब सबको यहाँ पे खुसरो का भी एक आपने सुनाई उनकी कही भी एक आध वर्सेस, अब आई एम नॉट श्योर के उस पर भी शगुफ्ता बड़ी बहस है कि जो वर्सेस कहे जाते हैं कि अमीर खुसरो के हैं, वो अमीर खुसरो के हैं या नहीं है। लेकिन एज ए हिस्टोरियन मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर नहीं भी है कब तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उस दौर की अक्कासी कर रहे हैं। अगर फैक्ट नहीं भी है तो लोग उनको एट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं जो एक्सेप्टेबल है लोगों में, है ना। अब वो खुसरो ने कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन लोग वही बात सुनना चाहते थे उनके मुंह से, है ना। क्या कहा था? आज रंग है मारी, आज रंग है री, मोरे ख्वाजा के घर आज रंग है री, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, देश विदेश में फिरी रे तेरा रंग भायो निजामुद्दीन औलिया। इससे खुसरो के मसलन इन अशार से वर्सेस से मैं ये तो नहीं कहूंगा जो बहुत से लोगों ने लिखा कि ये होली जो थी वो मुसलमानों में या दरगाहों में मनाई जा रही थी, ये तो नहीं साबित हो रहा। ये साबित हो रहा है कि होली का इतना असर था कि उसको कोट करके और अपने निजामुद्दीन को याद किया जा रहा था, यानी दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट टैबू। भले हिंदू ही मना रहे हो, क्योंकि अभी डायरेक्ट रेफरेंस, क्योंकि एज अ हिस्टोरियन
मैं कोई चीज नहीं मानूंगा जब तक कि डायरेक्ट एविडेंस ना आए। लेकिन बहरहाल ये है कि उस दौर में कम से कम इतना है कि होली को एक सैंक्टिटी दी जा रही है और माना जा रहा है। एक और जो आप शायद आपने सुनाया था अभी, खेलूंगी होली ख्वाजा घर आए, धन धन भाग हमारे सहनी, ख्वाजा आए आंगन मेरे। फिर वही होली का तस्वुर हमें खुसरो पेश कर रहे हैं। होली खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आजकल या बाय यू कैन से बाय 18th सेंचुरी और लेट 17th सेंचुरी खानकाहों में और इन सूफी दरगाहों में होली का जश्न बड़े जोर और शोर से मनाया जाता था, आज भी और उसको बहुत ही रिलीजियसली मनाया जाता है। लेकिन सल्तनत पीरियड में किस टाइप से था वो नहीं मालूम, लेकिन उसकी बुनियादें, उसकी जड़ें जो थी वो इस वक्त रखी जा रही थी जब अमीर खुसरो के मुंह में ये अशार डाले जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये एक कोई ऐसी चीज है। आपने सर, फिर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे जी लगता है कि हम लोगों को कुछ थोड़ा-सा सल्तनत पीरियड, चाहे वो रॉन्गली एट्रिब्यूटेड हो या राइटली एट्रिब्यूटेड हो, कुछ सुन लें। हमारे साथ हैं बिलाल चिश्ती, ध्रुव सांगारी, वो आएँगे और थोड़ा-सा हमारे सामने कुछ बिल्कुल। प्रेज़ेंट करेंगे एंड देन वी विल हैव you again. So हाँ here श्योर। is Bilal and Dhruv and good evening, Adab, Dhruv. You're on mute. ध्रुव अपना माइक। जी सलाम और आदाब प्रोफेसर साहब और शगुफ्ता जी, आपको आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? नो, आई हैव अनम्यूटेड माय सेल्फ। एम आई क्लियर नाउ? No, you're not. Actually, it's a very bad connection. Can we request you to log back in? Sure. I am quite. This is like a rap song almost. अच्छा, is this the issue? Sorry, So, in the meantime, let's proceed a little bit and then Dhruv will join us back. देखिए, तो सल्तनत पीरियड जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो काफी कट्टरपंथी दौर था एज कंपेयर टू द मुगल्स। राइट। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि खलजी पीरियड ऑनवर्ड्स काफी तादाद में नॉन मुस्लिम्स का जो हुकूमत के अंदर एंट्री हो चुकी थी। मैंने किसी प्रोग्राम में एक आध नाम भी लिए थे कि उन हिंदू लोगों के जो अलाउद्दीन खिलजी को सर्व कर रहे थे। तो जाहिर है कि वो इन्फ्लुएंसेस जो फिर पारसियों के, ईरानियों के, ताजिक स्पीकिंग, ईरानी स्पीकिंग लोगों के थे, उनको सबको मिला जुला के जो ये त्योहार था जो कहलाता नवरोज था, लेकिन एक्चुअली उसमें सेलिब्रेशन होली का भी हो रहा था। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट पढ़िए तो वो यहाँ उसको उसी अंदाज पे, मेरे ख्याल में अगर ध्रुव आ गए हों तो वो सुनाएंगे उसके बारे में कि क्या क्या उस पर पीरियड लगाया जा रहा था। लेकिन सल्तनत am I audible now? The connection is really shaky. It's rather bad. Okay, let me. Okay, so we'll have to have Dhruv log in again. Something is wrong, I think, in his connection. It seems that. हाँ, 1 minute. Dhruv, can you turn off the mic? This is perfect. हाँ, अब आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल. हाँ, अच्छा. I know what's happening. Actually, ये I think StreamYard doesn't take external mics like Zoom does. So I am just modifying my setup. Wait a second. You can hear me now properly, right? Yes. Perfectly well. Beautiful. Okay, great. Okay, cool. ठीक है. तो Good evening, Dhruv. Adab. How are you? I'm doing very well, thank you. How are you all doing? Very well. बस होली की आज तो बहुत ही सुपर डुपर सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डे है। हम लोग बात कर रहे थे और वैसे सब लोग आपको जानते हैं
और आपकी वैसे आज होली नहीं है, आज शबे बारात है, होली कल है, मगर आपको दोनों की मुबारकबाद हो। दोनों की मुबारकबाद। और वैसे ध्रुव साहब, मैं अभी अभी अपने शब बारात का जो मैं रिचुअल्स करता हूँ घर पे, जी 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 उससे जी जी फारिग होकर मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। शब रात की तो लोग न्याज भी करते हैं और अलग अलग उसके साथ इबादतें एसोसिएटेड होती हैं, और अलग अलग जो सेक्ट्स और कल्चर्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया के और आपको शायद आज मुझे करना पड़ा, बिकॉज येस्टरडे आई थिंक टुमारो आई वोंट हैव टाइम, तो माजरत हम आपको वी आर टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर स्पिरिचुअल रिचुअल्स। मेरा हो गया, मेरा स्पिरिचुअल से ज्यादा कल्चरल रहता है, वो हो गया। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं सुन रहा था बातें नौरोज की और होली की, और ये भी एक बड़ी हमारे कल्चर में इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ अगर हम समबूसा खाते हैं, जिसको ईरान में समबूसा कहा जाता है, और तो उसका आलू जो है वो पुर्तगाली जो है लैटिन अमेरिका से ले आते हैं, और हमारे यहाँ जो होली है वो दरअसल होली का दहन है, और साथ में लेकिन इसमें जो पिचकारी और अबीर और गुलाल है ये भी पर्शिया से लोग ले आते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि प्रोफेसर साहब आप बेहतर इस बात को समझा रहे थे कि हर चीज हमारे यहाँ बहुत मिली जुली है, और ये गंगा जमुनी जो प्लेटफॉर्म है ये ऐसी ही मिली जुली रवायतों और चीजों को याद करने और उनको एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो बहुत बहुत खुशी हुई। ध्रुव, जो आपने अभी समोसे का जिक्र किया, तो समोसे के साथ साथ आपने गुजिया का भी जिक्र किया। गुजिया भी वहीं से है, और फर्क बस इतना है कि ये मीठी है, वो वैसी है, उसके भी ओरिजिन तकरीबन वही। और जुलूबियात को तो हमें कतई नहीं भूलना चाहिए, जिसको मैं आज ही दोपहर को याद कर रहा था अपने भोजन के बाद, कि कहीं से जलेबी मैसर हो जाती तो बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो है कि जिसको कभी आप अलग नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें मिलके ही अलग होती हैं। तो यही बात बहुत खूबसूरती से आप बता रहे थे। आपने इलबारी तुर्कों की बात करी, और जो है हजरत अमीर खुसरो भी एक लाची तुर्क थे जो आए, और लेकिन उन्होंने ब्रज की जो जमीन है उस पे एक ऐसा उन्होंने बीज बोया जो वो रवायत जो जिसे बाद में हम मजमाउल बहरैन या गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जान रहे हैं, वो एक तरीके से उस दौर की ही देन है। और कई लोग कहते हैं कि आई मीन हम एज अ म्यूजिशियन, एज अ प्रैक्टिशनर, मैं दोनों ओरल हिस्ट्री और रिटन हिस्ट्री को उतना ही एहतराम करता हूँ। मुझे याद है एक नशिस्त हुई थी बहुत बहुत पहले, जिसमें एक फिरंगी स्कॉलर आई थी और उन्होंने कहा कि आप देसी स्कॉलर्स मुझे इतना समझा दीजिए कि कौन सा कबीर कबीर है और कौन सा कबीर कबीर की याद में या कबीर को इन्वोक करते हुए या कबीर के एजाज में और उन्हीं के बहर में, उन्हीं के आहंग में लिखा हुआ कबीर है। तो अशोक वाजपेयी साहब, नामवर सिंह सब वहां दिग्गज बैठे थे और बोले कि मोहतरमा, पर आप चाहती क्यों है कि ये आपको बताया जाए, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी तरीके से गोपीचंद नारंग जी कहते हैं के हजरत अमीर खुसरो से किसी ने पूछा कि ए अमीर, आपने अपनी हिंदवी जो वर्सेस थे जिसमें आपने रंग और बसंत और जो अपने पीर से मोहब्बत का आपने एक ब्रज की जुबान में खुद को एक राधा की मानिंद और अपने पीर को एक कृष्ण की मानिंद देख के आपने जिक्र किया, तो वो आपने कहीं जेर कलम क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा कि चंद सुखन अस्त नजरे दोस्तान करदा शुदस्त, कि मैंने अपनी दोस्तों की नजर कर दी है, चंद सुखन, बस उससे ज्यादा उनका कोई आप मुझसे मत पूछे। बिकॉज आई थिंक इवन ही अंडरस्टूड कि ये एक लोक परंपरा जो एक ओरल हेरिटेज है, वो एक बहर में वो चल रहे थे, और दूसरी बहर जो थी जो क्लासिकल परंपरा थी, जिसको कि संस्कृत में देसी और मार्गी भी कहा जाता है, या हमारे यहाँ कव्वाली में भी आप इसको देखेंगे
तो हमारे उस्ताद कहते थे कि कव्वाली बजाते खुद 2 अंग का गाना है, और 2 अंग यानी एक उसमें जो लोक विरसा जो समाया हुआ है, जिसमें कांस्टेंट इनोवेशंस और चेंजेस होते हैं, और साथ साथ ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है जो कव्वाल बच्चों के क्लासिकल तरीके से। तो आई थिंक कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक डबल हमारी जो पैरेलल, लिटरली पैरेलल कल्चरल लाइव्स जो हैं, जो एक साथ इतनी खूबसूरती से चलती हैं। तो आई थिंक होली भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शायद। जी तो हाँ, जी हाँ, जी, तो जी, मैं थोड़ा सा ये हजरत शाहनियाज साहब, जिनका एक बहुत मशहूर ज़माना कलाम जो है सुनहरे हरफों में हमारे जो है अजमेर शरीफ की दीवार पे लिखा हुआ है, उनके ख्वाजा साहब के रोज़े मुबारक पे लिखा हुआ है कि ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन फ़ख्र कौनो मकाम मोइनुद्दीन। तो उन्हीं हज़रत शाह नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये कलाम है, again everything is not things were written later, print came later, so it's interesting that right up till even Hazrat Mohani Sahab, this was a tradition, this was a done thing कि आप हिंदवी और ब्रज और खड़ी बोली में अपने आप को लोगों के बीच एक्सप्रेस करते हैं ऑर्गेनिकली, और साथ ही साथ आपका अपना एक फारसी और उर्दू का भी एक पूरा दीवान है जो आप लिख रहे हैं। And so this is so a kind of it was considered perhaps a kind of एक अलग-अलग कल्चर से अलग-अलग तरीके में एंगेज करने की और उनमें अपना कहलाने की एक जो एक हर जो है ना वो हर जगह जो है एक अपनापन दिखाने और मिलने की जो एक हमारे रवायत है, मिली जुली रवायत। तो हजरत बेदम कुछ यूं फरमाते हैं, इजाजत अगर आपकी। अहमद जियो के हजरत अली का रंग बनो और हसन हुसैन खिला ऐसी होली की दो मचो है चहूं और पड़ी है पुकार ऐसो अनोखो चतुर खिलाड़ी रंग दीनों संसार रंग दीनों संसार नियाज प्यारा भर भर छिड़के एक ही रंग
सहस पिचकार, एक ही रंग सहस पिचकार, और होली हो रही है अहमद जियो के वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नियाज प्यारा भर भर छिड़के, नियाज प्यारा भर भर छिड़के, एक एक ही रंग सहस पिचकार, एक ही रंग सहस्र पिचकार। वाह 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 वाह। यही है हमारे कल्चर का, हमारी तहजीब का रंग, जहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम सबको ये जो पुराने जो हमारे रवायात हैं, जो चीज़ें हैं, इससे हम लोगों को न सिर्फ ये कि आशना होना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को भी हमें बार बार याद दिलाना चाहिए। यकीनन, यकीनन। ध्रुव साहब, जो आपने ये सुनाया, आपने कैसे एक सूफियों के उसमें, जो कि बहरहाल एक मुसलमान है और जिस टाइप से होली को वो कर रहे हैं, उस सिलसिले में आज जो एक मेरे साथ वाकया गुजरा, मैं उसको आपके सामने बस इतना छोटे से थोड़े से उसमें सुनाना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं कि जिसमें अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता हूँ और ऑनलाइन जाके हम लोग क्लास लेते हैं। तो आज मैंने सबको मुबारकबाद भेजी, होली की मुबारकबाद, क्योंकि बहरहाल आज से शुरू हो गया और होली तो कल है, आज शब बारात है, लेकिन बहरहाल होली की तकरीबात आज से शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने बच्चों को दो तीन क्लासेस हैं, सब सारे ग्रुप्स में मैंने होली की मुबारकबाद मैंने इनको भेजी, और मुझे अफसोस हुआ और ताज्जुब हुआ जब उसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया। हमारे जो अपने मुसलमान बच्चे थे, उन्होंने जहमत नहीं की कि ये तो शायद हिंदुओं के लिए है जो होली मुबारक कहा जा रहा है। और उसको देखने के बाद मुझे मतलब ये सोच के खुशी हुई कि आज हम लोग इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं जहां हम इन नौजवानों को बताने की कोशिश करेंगे कि भाई मजहब हमको अलहदा अलहदा होना नहीं सिखाता है। मजहब ने तो हमसे कहा है कि पहल करो, अगर वो फर्ज महाल, अगर कोई चीज ऐसी है कि जो इस्लाम में आप नहीं मना रहे हैं और आपके हमसाया हजरात मना रहे हैं, तो एज अ मुस्लिम आपका फरीजा है कि आप उनको उसकी मुबारकबाद दें। यकीनन, यकीनन, यकीनन। ये चीज आज मालूम नहीं क्यों 21वीं सदी में हम लोग इस चीज को भूल गए हैं। ध्रुव साहब, क्योंकि आप सूफियाना उससे जुड़े हुए हैं, मिजाज के भी हैं, और जाहिर है कि निजामुद्दीन दरगाह पे आप अक्सर मौजूद भी होते हैं, तो क्या कोई एक छोटी सी एक एग्जाम्पल जो इस मौके के ऊपर इन सूफी दरगाहों पे गाई जाती हो या किस टाइप से तकरीबात होती हो, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें या गा के सुनाना चाहें? यकीनन बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस हैं, और आप और जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात कर रहे हैं, वंस अगेन, अगर आप जो है पाक मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम हवाला लें, तो हदीसों में ये बातें भी आई हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो वहाँ की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस थी उनके साथ अग्रीमेंट्स किए और उनके साथ उन्होंने एक सर्टन सुलूक किया, और हत्ता के एक दफ़ा शायद ईस्टर मनाने के लिए उन्होंने अपनी मस्जिद में उन्हें जगह दी, एक क्रिश्चियन डेलीगेशन को। तो ऐसे हमें कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और तो आई थिंक जो डेजर्ट फादर्स का और जो डेजर्ट मदर्स से जो रिलीजन्स आते हैं, इब्राहिमिक ट्रेडिशंस जो आती हैं,
वहाँ पे भी बहुत सिंक्रेटिज्म है जूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। और सिमिलरली अगर हम सेंट्रल एशिया में देखें तो जो ऑलमोस्ट स्टिल मे बी द राइज ऑफ कलोनियलिज्म, जितने इंटरेक्शंस थे बिटवीन बुद्धिज्म एंड इस्लाम एंड अदर सेक्ट्स, वो ज्यादातर पॉजिटिव थे और इंटरेस्टिंग थे और एक दूसरे को फीड कर रहे थे। और जो इंडिक ट्रेडिशंस के साथ जो सूफीज्म और इस्लाम का जो इंटरेक्शन रहा वो भी काफी पॉजिटिव रहा, एटलीस्ट एट अ लेवल ऑफ philosophy, a level of culture, a level of shared spirituality, and creating a kind of a third space where everybody could converge. And I think most of the conflicts were more to do with economy and politics rather than religion per se. Having said that, सूफियों का जो रवैया रहा है, आई थिंक अगर हम मौलाना रूमी को देखें तो वो कहते हैं कि चित तदबीर मुसलमाना व मन खुदरो नमीदानम। तो खुद को टटोलने, अपने अंदर जाने का जो एक ये हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं इश्क के मजहब का मानने वाला हूँ, ना मैं ब्राह्मण का जनेऊ पहनता हूँ और ना मैं जो हूँ मौलवी के कहे फतवों में मेरा इतना ज्यादा यकीन है। और वो उनका तो मजहब ये है कि वो कहते हैं सरे बाली ने मन बरखेज है नादा तबीब, दर्द मंदे इश्क रा दारू बजुज दीदार नीस्त। तो उनका करीना यही है कि मैं इश्क के, जब तक मैं अपने यार का दीदार नहीं करता, तो उनकी स्पॉन्टेनियस जो एक जुस्तजू थी अपने पीर के लिए, वो उनके कल्चरल, सोशल और ऑफ कोर्स लिटरेरी लाइफ के हर पहलू में नजर आती थी। तो हजरत अमीर खुसरो, एक बार का बसंत का वाकया जो है बहुत मशहूर वाकया है कि जब आप और क्योंकि बसंत, नौरूज, होली ये तीनों बहुत क्लोज एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ब्रज की जुबान में आपकी महारत थी, तो आप अक्सर ये डिवाइस, पोएटिक डिवाइसेस यूज करते थे। कहा जाता है कि जब आप अपने पीरो मुर्शद से मिले तो आपने घर जाके अपनी वालदा से कहा कि मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, आज रंग है रीमा रंग है री, वो तो जब देखूं मोरे संग है री। बट अगेन बिकॉज ही सेड नजरे दोस्तान करदा शुदा, सो ही डिडंट राइट इट डाउन एनीवेयर। बट क्योंकि ओरल ट्रेडिशन भी कोई चीज है, इसीलिए हम इसको, मैं उसको उतना ही मान देता हूँ। और इस तरीके से जो गीत, सोहेले, इतनी सारी चीजें जो लिखी उन्होंने, बसंत में जब एक बड़ा मशहूर वाकया है कि ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जो नेफ्यू थे वो इंतकाल कर गए थे, और तो वो उन्होंने अफसोस उनको इतना हुआ इस बात का, वो इतने ज्यादा गमगीन हो गए कि उन्होंने चिल्ले में वो चले गए अपने, और अपने हुजरे में चले गए। तो बसंत के दिन हजरत अमीर खुसरो गॉट इंस्पायर्ड बाय these women who were basically going to worship probably the goddess Saraswati, wearing yellow clothes and carrying yellow flowers and with yellow desserts or sweetmeats and yellow rice. तो कहा जाता है कि ये पीली चीजें पेश करना, वसंती रंग की चीजें पेश करना, ये रवायत तब बनी जब हजरत अमीर खुसरो ये गाते हुए अपने पीर के सामने पेश हुए, जो मैं थोड़ा सा मैं आपको बिस्मिल्लाह। अश्क रेज़ा मदा ये राग शाहाना बहार में है। राग शाहाना हजरत अमीर खुसरो का बनाया हुआ राग है। अश्क रेज़ा मदा
अब रे बहार साकिया साकिया गुल रे बागा बागा अजरत ख्वाजा संग खेलिए दमाल अजरत ख्वाजा संग खेलिए दमाल अजरत ख्वाजा संग खेलिए दमाल बाईस ख्वाजा मिल बन बन आए बाईस ख्वाजा मिल बन बन आए तावे हजरत रसूल साहिब जमाल हजरत ख्वाजा संग खेलिए दमाल हजरत ख्वाजा अरब यार तोरा बसंत मनायो अरब यार तोरा बसंत मनायो रखियो जगत में लाल गुलाल हजरत ख्वाजा संग खेलिए दमाल हजरत ख्वाजा संग खेलिए दमाल। तो ये एक आज भी कव्वाल हजरात जो हैं ये, और फिर वो फूल रही सरसों सकल बन, इस तरीके का कलाम जो है वो, और वो हजरत अमीर खुसरो जिस तरीके से अपने पीर मुर्शिद के सामने पेश हुए, वो एक सर पे पीला साफा बांधे, पीली दस्तार बांधे, अपने पीर के लिए एक पीली दस्तार अपने हाथों में लिए, और अपने गले में एक ढोलकी डाल के, और जो ढोलकी जो है जो अरबी दुगल है, दुगल जाने जिसको इंडिया में ढोल कहा जाता है, उसका एक छोटा कजन है जो हाथों में यूं, जिसको नाल या खोल भी कहा जाता है इंडिया के दूसरे हिस्सों में, वो डाले आप पेश हुए और आपने ये कलाम पढ़े, ये अशार पढ़े, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया वाज वेरी मूव्ड एंड वो बाहर आए और उन्होंने गले लगा लिया, और फिर ये रवायत चालू हुई। तो आज भी हजरत तकीउद्दीन चबूतरा यारान और हजरत तकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक का एक चक्कर लगाते हुए, एक तवाफ करते हुए वो लोग आते हैं, और फिर वो पहुंचते हैं पहले हजरत अमीर खुसरो के आस्थाने पे, और फिर फाइनली वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पे पहुंचते हैं। तो ये रवायतें जो हैं आज भी जिंदा हैं रवायतें। और मुझे याद है कि मैंने एक छोटा सा क्लिप वीडियो का किसी ने ड्रोन के जरिए लिया था, बड़ा खूबसूरत क्लिप, जिसमें फूल रही सरसों पढ़ा जा रहा था, और सारे खुद्दाम हजरात और कव्वाल और वहां पे जो जायरीन आए हुए थे वो खड़े हुए थे। तो मुझे कई एक म्यूजिक के प्रोफेसर्स का ग्रुप है, तो आई थिंक बाय एक्सीडेंट वो वहां चला गया, और लोग करीब 10-11 लोगों ने मुझे कहा कि हमने तो जिंदगी में, हमें लगा भी नहीं कि अब ये चीजें होती हैं। तो मैंने कहा कि देखिए आप दिल्ली में हैं और आप जो है इस चीज को भूल गए। तो आई थिंक ये जो गंगा जमुनी तहजीब है ना, ये बहुत फ्रेजाइल चीज भी है, तो इसीलिए जो चीजें लोगों को याद रखनी चाहिए वो भूलते जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके की चीजें आज भी जरूर जिंदा हैं, और उन्हें जानने वाले जानते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये दो जो छोटे छोटे ऐसे अपने कंपोजिशंस हम लोगों को सुनाए, जो ये शो करता है कि जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का एविडेंस मिल जाए तभी हम उस चीज़ को मानें। जो हमारे समाज में जो चीज़ें राइज हो जाती हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई सच्चाई होती है, बगैर उसके जी वो इतना आम नहीं हो पाती। और ज़ाहिर है कि जो अमीर खुसरो, हज़रत अमीर खुसरो का जो इन दरगाहों के सिलसिले में जो उनकी जो रवायात मिलती हैं या जिस टाइप से उसका जिक्र मिलता है, और सिर्फ वही नहीं मिलता बल्कि जो मलफूजात मौजूद हैं उसमें भी जिस टाइप से मिलता है, उससे तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि इन दरगाहों पे अहले हुनूद ज्यादा पहुंच रहे हैं बनिस्बत। जी हाँ, चिश्तियों की दरगाहों पे तो आज भी 70% लोग जो हैं नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, सिख हैं, हिंदू हैं। तो उस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये चीजें बिल्कुल बैत से बाहर, ये नामुमकिनात में से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक फैक्ट है जिन्होंने इन रवायात को जन्म दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये
कि अगर ये रवायात ना होती तो फिर 18वीं सदी आते आते जो शुरू में शगुफ्ता साहिबा ने जो बुल्ले शाह का जो कलाम सुनाया था, जी 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 जी। वो तो होली कोई खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। वो मिथ नहीं है। हाँ इनको हाँ तो आप कह सकते हैं कि किसी ने बनाया होगा, लेकिन होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी का रत्न चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, रंग रगीली ओहरी क्या, क्या खिलाए, जिस जिस सिखी होवे। हो फना फी फिल्लाह, अलस्तु बि रब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियां ने घूंघट खोले, कालू बलाउन हेकर बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जी जो जी जी किया है बुल्ले शाह ने, जाहिर है कि मैं उसको उस तरह पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर इस जाहिर है कि वो मेरे पढ़ने में, इसकी मेरी अदायगी में उसका आधा लुत्फ चला गया। नहीं नहीं। लेकिन जो उसके पीछे बुल्ले शाह का जो एक तरीके से जो ये अशार हैं, जो हिस्टोरिक है, वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि किस तरीके से मिडिवल पीरियड में ये गंगा जमनी तहजीब तैयार हो रही थी। और बुल्ले शाह का जो पीरियड है, उनकी उनकी जो पैदाइश है वो 1680 है, जी हाँ और जी हाँ जी हाँ। 1757, यानी ही इज अ कंटेम्पररी टू औरंगजेब एंड देन द लेटर पीरियड ऑफ यस औरंगजेब। यस यस यस। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। हम एंड लोग इन फैक्ट औरंगजेब, जी मतलब जी उस चीजों को औरंगजेब की हम याद रखते हैं, लेकिन वो जो समाज उभर के आया था उस हाँ दौर, उसको हम भूल जाते हैं। तो बुल्ले शाह जो हैं वो अक्कासी कर रहे हैं उस हिंदुस्तानी समाज की, और उस समाज में चाहे होली हो, उसको खेलना अल्लाह का नाम लेके वैसे ही इबादत है जैसे कि कोई बेशक। और। नहीं, और और जो कलाम है उसमें अगर आप आगे देखें प्रोफेसर साहब, जी 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 कि दो चीजें आजकल होने लगी हैं बहुत, और ये हमारी समाज की वेग्रेंसी की तरफ भी एक इशारा है कि देयर इज अ रैंगलिंग ओवर आइडेंटिटी। तो मैं हमेशा लोगों को ये बात बताता हूँ कि जो जैसे हम अगर हजरत मोहानी साहब को देखें, वो उन्होंने लॉर्ड कृष्णा पे कितनी सारी पोएट्री उन्होंने लिखी है, और मुंह से छेड़ करत नंदलाल, रंग डारी मुंह पे पिचकारी वगैरह। वो शख्स जो है वो अपने आप को कैसे डिफाइन करते थे, वो कहते थे सूफी मोमिन हूं, इश्तराकी मुसलमान। तो उनको सूफी होने में, एक मुस्लिम होने में, और जो है यानी अहले सुन्नत वल जमात या सुन्नी होने में, और साथ ही साथ अब उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसके अलावा अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं या लेफ्टिज्म या मार्क्सिज्म या सोशलिज्म कहते हैं, तो उनको किसी भी चीज से कोई गुरेज नहीं हो रहा था। हम बुल्ले शाह साहब को देखें तो इसी कलाम में वो आगे और क्या कहते हैं, वो कहते हैं, he is quoting after Surah Al-Araf where he is talking about Alast, where Allah is saying Alast bi Rabbikum, and all the souls are like the Sakhis around Lord Krishna, so they lift their veil. At the next one he's saying An-Nahnu Akrab, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। An-Nahnu Akrab की बंसी बजा के, again, so very much we see again the bansuri wala idiom is here again. And then he's quoting a very famous hadith, मन अराफा नफ्स की कूक सुना के फकद अराफा रब्बाहु बन अराफा नफ्स। ये बात तो शायद एक नो दाई सेल्फ, ये बहुत मशहूर एक ग्रीक भी कोट है शायद, जी जी फसम्मा वजहुल्लाह की धूम मचाई व दरबार विच दरबार रसूल अल्लाह। मतलब कि मेरी होली ने क्या क्या किया, फसम्मा वजहुल्लाह की धूम मचाई विच दरबार रसूल अल्लाह, होली खेलूंगी पढ़ बिस्मिल्लाह, होली खेलूंगी पढ़ बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ा के, मतलब मुंदरी पहन के, अंगूठी पहन के जो हूं, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। तो ये एक चीज और यहां मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि
by taking things away from their context, we are also doing a disservice. आज जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो खुद को अपने क्रेडेंशियल्स को जो हैं प्रूव करने के लिए इतने ज्यादा आगे चले जाते हैं कि फिर उनको जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ब्लर करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट टू ट्राई एंड प्रूव के जी यू नो. बट बुल्ले शाह साहब, he challenged Aurangzeb in his poetry, "Hun bas kariyo yaar." You know, he openly sided with and sympathized with, you know, even the Sikh cause, so many things. But at the same time, he even said कि you know, मैंने अपने सैयद खानदान को छोड़ दिया, मैं एक अराई के साथ चला गया, वो सारी चीजें उन्होंने कही. But at the same time, he's very much invoking this idiom. So this means that he knows where he's rooted. I think the people who follow him, they have the confusion. Similarly, Hazrat Amir Khusro also knew very much where he was rooted when he was talking about mazhab-e-ishq. और फिर हम आते हैं सिराज औरंगाबादी पे जो कहते हैं मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा. तो लेकिन जो इश्क की बात कर रहा है, इश्क के मजहब का तस्वुर कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने मजहब को छोड़ रहा है या वो कह रहा है कि इस सबको पे लानत भेजो. वो उसको बहुत मोहब्बत से, एहतराम से और अकीदत से संभाल के भी रख रहा है. एट द सेम टाइम वो एक ऐसे समाज की कल्पना भी कर रहा है या कर रही है जहां सबके लिए जगह हो. सो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड आल्सो रिमेंबर, दैट होली इज a syncretic festival, not just because people left their identities. No, they very much respected and loved them, but at the same time they loved everybody else on human terms, I think. So मैं एक चीज और आपसे ये कहना चाहूंगा कि ध्रुव, कि ये सिर्फ सूफियों में नहीं है, बल्कि जो दूसरे जो फिरके हैं इस्लाम के, उसमें भी जो होली के जो आसार हैं, असरात हैं, वो आपको बहुत कुछ नजर आएंगे. मसलन अगर मेरे, बार बार अपने को म्यूट कर लेता हूँ, लेकिन अगर शायद सुना हो कि पीछे पटाखे छूट रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए जो पटाखे मेरे घर के आसपास छूट रहे हैं, ये होली वाले नहीं हैं. ये होली वाले नहीं हैं, ये शब बारात वाले हैं. वाह 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 वाह. ये शब बारात में भी यानी हुकूमत के मना करने के बाद भी आज भी होली पे छूटते हैं, शब बारात पे भी छूट रहे हैं. हालांकि उसमें भी काफी फतवे मुल्लाओं के आ चुके हैं कि ये करना मना है, लेकिन ये सारे असरात हमने गिव एंड टेक जो हमारे यकीनन समाज में है, या मसलन जो 15 शाबान या शब बारात के बाद का जो दूसरा दिन आता है, जो एक खास तबके में पैदाइश इमाम मेहदी के नाम से मनाया इमाम मेहदी का दिन मनाया जाता है. जी हाँ, मनाया जाता है. उसमें अगर आप लखनऊ, अवध और अतराफ अवध अगर आप तशरीफ ले जाएंगे, तो सिर्फ पटाखे ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ में रंग भी खेला जाता है. वाह 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 वाह, ये बात वो रंग भी खेला जाता है. बाकायदा बाल्टियों में कलर्ड वाटर तैयार किया जाता है, एक दूसरे पे फेंका जाता है. और ये चीज जो है हमें मुगलिया दौर में भी ये नौरोज, दूसरे फेस्टिवल्स में ये मनाते हुए, नौरोज में उस तरीके से रंग ईरानी कस्टम नहीं था खेलने का. ये कस्टम जो मुगलिया अहद में, और हमारे पास कई मिनिएचर्स भी हैं. मसलन एक मिनिएचर है जिसमें जहांगीर अपने दरबार में बैठे हुए हैं और वो अपने दरबारियों के साथ वो होली खेल रहे हैं. और उस होली में नहीं, इसके अलावा लास्ट में मैंने शगुफ्ता भेजी थी, सबसे आखिर जो भेजी थी, उसमें दरबार का एक सीन है और उसमें वो बैठे हुए हैं और बैठ के आबपाशी कर रहे हैं. तो बाज़ दफा होली का टर्म मुगल सोर्सेज में तकरीब आबपाशी के नाम से भी आता है, जहाँ पे रंगा हुआ पानी. आज भी लखनऊ में नौरोज और उसके ऊपर वो उस चीज को मेंटेन किए हुए हैं. एक उसमें वेसल में पानी रख लेते हैं और पानी में या तो गुलाब का फूल या चांदी का सिक्का, उसको डुबो के एक दूसरे पे चींटे उछालते हैं उस पानी की. उसी तरीके से शब बारात के बाद ये जो इमाम मेहदी का जो जश्न मनाया जाता है,
इसमें भी यही तकरीबात होती हैं। ये सारे के सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही अंदाज में हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी सब मिलके एक जो हमारा जो एक कौमी सिलसिला है, जो हम एक कौम है, जो हिंदुस्तानी कौम है, जो पर्शियन सोर्सेस को अगर आप ध्रुव साहब पढ़ें, अक्सर जी। हमको दूसरे लोग जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि देखिए हिंदुओं का जिक्र है। हम्म, हम्म, हिंदू का जिक्र जहां जहां सल्तनत पीरियड के सोर्सेज में आ रहा है, वहां मुराद हिंदू टर्म की किसी एक रिलीजियस ग्रुप से नहीं है, जी जी, अहले हिंद से। ये टर्म ही जब अरबी फारसी का टर्म है। बेशक बेशक अहले हिंद से मुराद है। तो बेशक बेशक, यकीनन। यानी जिस वक्त नादिर शाह का भी जो हमला हुआ है ध्रुव, तो उस वक्त जो मुगल बादशाह को जो उसने पुकारा है या यहाँ वालों को जो कहा है, वो हिंदुआ ने कलमगो कह के पुकारा है। हाँ हाँ, वो इंडियन 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 मोहम्मदन्स और मुस्लिम्स। जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक यकीनन। कल्चर जो हम लोगों के बीच में है। ध्रुव, आपने काफी कुछ हमें बताया सल्तनत पीरियड के बारे में और गा के भी सुनाया। मैं चंद अल्फाज मुगलिया अहद के बारे में भी कुछ बयान करना चाहता हूँ। हालांकि मैं उस पर स्ट्रेस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुगलिया दौर के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट उठा के देखेंगे तो कई राइटिंग्स हैं। मसलन आई वुड रेफर टू वन ऑफ द आर्टिकल्स रिटन बाय माय सीनियर फ्रॉम अलीगढ़, राना सफवी। उन्होंने कैसे मुगल पीरियड में होली मनाई जाती थी, उस पे भी उन्होंने भी लिखा है, जिसपे एक आध पेंटिंग्स उन्होंने दिखाई हैं। मैं इसीलिए उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये सिर्फ अकबर के पीरियड में नहीं था। जो आमतौर से हम लोग समझते हैं ना, जो दो नाम ले लेते हैं, शाहजहां और अकबर, समझे। सबसे पहला रेफरेंस अगर होली के बनाने का आता है तो वो बाबर के दौर से आता है। जी हाँ, बेशक बेशक। 3.5 साल का जो पीरियड है, उनको ये रंग खेलना इतना मुतासिर करता है कि वो उस पानी को तैयार करवाते हैं। और जकाउल्ला एक हिस्टोरियन गुजरे हैं, उन्होंने लिखा है कि ही वाज सो वंडर स्ट्रक दैट ही आस्क्ड पीपल टू प्रिपेयर दैट कलर्ड वाटर, और उससे वो उन्होंने फिर उस रंग से एक तरीके से सेलिब्रेशंस किए। जो होली का टर्म नहीं उन्होंने लिखा, लेकिन कहा कि जहां जो जिस टाइप से ये खेला जाता था उससे मुतासिर होकर उन्होंने बाबर ने अपने, यानी उन 3.5 साल का दौर जब अभी ये कॉन्कर कर रहे थे। और बाबर को हम क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि बुत शिकन, ये तो यहाँ हिंदुओं को खत्म करने आए थे। ध्रुव, अगर आप उसकी हकीकत देखें तो बाबर के पूरे दौर में, चाहे वो आप उसके समरकंद से शुरू करके और दिल्ली की हुकूमत तक देख लें, फकत एक मस्जिद बनवाई है उन्होंने अपनी। नहीं, और अगर 20 भी बनवाई होती तो इट वुड बी फाइन। जी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, उसके बाद फिर जाहिर है कि अकबर को सभी जानते हैं। अकबर के पीरियड में अबुल फजल पूरी उसकी डिटेल्स दे रहा है कि किस टाइप से मनाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है। और कहते हैं कि अकबर जो है वो साल भर इंतजार करते हैं इस फेस्टिवल का। और खूबी देखिए कि अकबर साहब जो एक हरकत करते हैं जो आखिरी दौर तक 1857 तक चली, वो ये थी कि वो जो नौरोज का फेस्टिवल है, जो विद इन अ फ्यू डेज ऑफ होली आ जाता है। जी, 20 मार्च को, 20 या 21 मार्च को नौरोज आता है। होली का दिन थोड़ा आगे पीछे वो मौसम के एतबार से, हिंदुस्तान के उसके एतबार से बदलता रहता है। जैसे 27 या 28 को पड़ी, वरना 24 को पड़ जाती है, कभी 19 को पड़ जाती है, तो उसके वेरी करता रहता है। नौरोज का बिल्कुल 20-21 फिक्स्ड है, वो इधर उधर नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, अकबर साहब ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नौरोज का सेलिब्रेशन जो है वो पहले कहा 9 दिन होगा, और फिर उसको कहा कि वो वेरी कर रहा था होली का त्योहार भी, उसको बढ़ा के उन्होंने 19 दिन कर दिया। वाह 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 वाह, ताकि दोनों चीजें जो है वो साथ में। और उनके उसमें जिक्र मिलता है कि इस फेस्टिवल में न सिर्फ ये कि रंग खेला जाता था और तकरीबात होती थी,
बल्कि जोगियों को अभी यहाँ कोर्ट में आना होता था और उसके डांस वगैरह होते थे। ध्रुव, मैं आपका सिर्फ 1 मिनट और लूंगा कि उसी पीरियड में आपने रस खान का तो जाहिर है कि आपके तो उनके अब्दुल रहीम खान जी जी उनका आपने पढ़ा भी, आपने गाया भी होगा उन्हें। वही दौर है अकबर का पीरियड। जी जी आज जी होरी रे मोहन होरी, कर हमारे आंगन गारी दई आयो सो कोरी, अब के दूर बैठे मैया धींग निकासो कुछ बिहारी, वगैरह वगैरह। ये पूरा उनका होली को लेके कि ये आज के दिन होली है, और फिर उसके ऊपर उनके वर्सेस हैं जो अगेन आई वुड पॉइंट आउट कि अमीर खुसरो पे आप डाउट कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं कहे थे, कि उनके नाम पे किसी और ने बाद में कह दिए, लेकिन जो मुगलिया अहद के ये जो अशार हैं, जो चीजें हैं जो हिंदवी और हिंदुस्तानी में कही गई हैं, ये बाकायदा रिकॉर्डेड हैं, जिसमें इसमें होली का इन्वोकेशन और खुशी का इजहार, और इसका इजहार कि होली जो है किस तरीके से हम लोग उसको मना रहे हैं। इतनी मनाई जाती है कि जहांगीर के पीरियड में, अभी शगुफ्ता आपके सामने वो पेंटिंग दिखा रही थी जहां पे बाकायदा होली खेली जा रही है, जहांगीर खुद होली खेल रहा है। एक पैसेज छोटा सा मैं आपको तुजुक जहांगीरी से पढ़ के सुना दूं। तुजुक में जहांगीर लिखते हैं होली का जिक्र करते हुए, देयर डे इज होली, देयर से मुराद नॉन मुस्लिम्स की, which is in their belief the last day of the year. This day falls in the month of Isfandarmuz, when the sun is in Pisces. On the eve of this day, they light fires in all the lanes and streets. When it is the daylight, they spray powder on each other's heads and faces for one watch and create an amazing uproar. After that, they wash themselves, put their clothes on, and go to gardens and fields. Since it is an established custom among the Hindus to burn their dead, the lighting of fires on the last night of the year is a metaphor for burning the old year as though it were a corpse. तो इसमें जो तुजुक में जो जहांगीर लिख रहे हैं वो थोड़ी बहुत जो एक्चुअलिटी लिख रहे हैं, और कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी, उसका भी उसमें झलक आ रही है। बट द फैक्ट इज कि बाय जहांगीर टाइम होली वाज बीइंग ऑफिशियली सेलिब्रेटेड नॉट ओनली अमंग द मासेस, पब्लिक में ही नहीं, पब्लिक में तो मनाई ही जा रही थी, वो आज से नहीं, वो सल्तनत पीरियड से बनाई जा रही थी, लेकिन अब किला मोहल्ला के अंदर भी बाकायदा उसका होली का जश्न जो था वो मनाया जाता था। इतना मनाया जाता था कि शाहजहां का दौर आते आते, इसको भी अभी इन्होंने गुप्ता ने आप पे पॉइंट आउट किया था कि ईद गुलाबी के नाम से शाहजहां इसको पुकारता है, जश्न आप पाशी इसका नाम दिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे पे रंग छिड़का जा रहा है। और ये याद रखिए ध्रुव कि शाहजहां जो है वो अकबर की तरह लिबरल नहीं, शाहजहां वो बादशाह है कि जो मजहब को दोबारा से पॉलिटिक्स पे लेके आता है। बिलाजे औरंगजेब बदनाम है, इट इज एक्चुअली शाहजहां हु ब्रिंग्स इन। और सबसे ज्यादा अगर होली का फेस्टिवल अगर कहीं पे पेंटिंग्स में और उसके अलावा जो नजर आ रहा है वो शाहजहां का दौर नजर आ रहा है कि जब इसको बाकायदा, और यहाँ तक के बहादुर शाह जफर आते आते तो अब क्योंकि जफर खुद एक शायर हैं तो वो होली के अशार भी कहते हुए नजर आते हैं। तो यानी इन अदर वर्ड्स, अगर सल्तनत पीरियड में इस फेस्टिवल को थोड़ा सा मतलब एक नौरोज के फॉर्म में मनाया जा रहा था, लेकिन मुगलिया अहद आते आते उसको नाम लेके बाकायदा उसको इन्होंने बाकायदा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, और इतना सेलिब्रेट होता था कि बाय 1857, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बयान करूं कि शुआरा आफ्टर शुआरा ऐसे हैं कि जिनका कलाम भरा हुआ है होली की बात, और सारा के सारा सिर्फ फारसी में भी है, हिंदवी में भी है, ब्रज में भी है, पंजाबी में भी है। ये दिखाता है कि तकरीबन समाज के जितने तबके और एरियाज हैं वहां के ऊपर बिला तफरीक हिंदू और मुसलमान
बिला तफरीक के कौन किस मजहब व मिल्लत का है। होली हमारा एक ऐसा फेस्टिवल निकल के आ गया था कि जो हिंदुस्तानी फेस्टिवल था, जिसको सब बेशक मनाते। बेशक आखिरी एक बात मैं और आपसे कह दूं कि मैंने एक बार ये स्टडी देखना शुरू किया कि आखिर कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो मुगलिया अहद में बहुत ज्यादा मनाए जाते थे। ध्रुव, मैं एक्चुअली मैं एक आर्टिकल लिखने जा रहा था, जो मैं ढूंढ रहा था वो मुहर्रम का ढूंढ रहा था, मुहर्रम का कितना जिक्र मिलता है। तो मुहर्रम का भी काफी मिला, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जिसका इंकशाफ हुआ मुझे, वो ये था कि अब जो जितने फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो जो हिंदुस्तान के मेन फेस्टिवल्स जो बता रहे हैं वो ईद नहीं बता रहे। वो या तो ईद मिलादुन नबी का जिक्र कर रहे हैं और या नौरोज का कर रहे हैं, और दो जो बहुत पॉपुलर फेस्टिवल जिनका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, तकरीबन हर एक राइटर ने किया है, वो है होली और दिवाली। और इनका ऐसा तस्करा होता है कि लगता है कि कोने कोने, स्ट्रीट स्ट्रीट, हिंदू और मुसलमान सब मिलके इस फेस्टिवल को मना रहा होता है। आज ध्रुव, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि जब हम लोग को ये बताया जाता है कि आप क्यों मना रहे हैं, ये तो दूसरों का फेस्टिवल है। या हिंदुओं से या दूसरे हमारे जो और भाई हैं उनसे ये सुनने को मिलता है, अच्छा आज आपका फंक्शन है, आज आपकी ईद है। एक दौर ये था हिंदुस्तान में कि जब चाहे वो ईद हो या मुहर्रम हो या होली हो या दिवाली हो, ये सारे हिंदुस्तानियों के फंक्शन थे जिसको बिला तफरीक हम लोग सब मिलजुल के मनाया करते थे। आई विश कि वो दौर वापस आ जाए। यकीनन 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 बहुत आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। और जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर ऐसा एक दौर था जब तुलसीदास, रहीम और रस खान सब कंटेम्पररीज थे, तो यकीनन वो दौर वो भी रहा होगा जब ईद गुलाबी और जश्न चरागा यानी दिवाली एक साथ मनाया जाता था। और अगर मुगलों ने पिचकारी, अबीर और गुलाल दिवाली में होली में कंट्रीब्यूट किया, तो आतिशबाजी उन्होंने दिवाली में कंट्रीब्यूट करी। तो इनफैक्ट लोग ये भूल जाते हैं अक्सर, इनफैक्ट हमारी जो अक्सरियतें हैं उनमें, कि अगर इन सारी कंट्रीब्यूशंस को हम हटा लें तो जो फेस्टिवल है उसकी जो लुक है, उसकी जो वाइब है, उसकी जो नौयत है, अपने वापस एक बहुत पेस्टोरल, एक रूरल, एक रीजनल अपने कॉन्टेक्स्ट में चली जाएगी। इनफैक्ट मैंने छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में देखा है कि जो दिवाली है वो पूजा से मनाई जाती है। वहाँ कोई पटाखे नहीं फूट रहे होते। पटाखे फोड़ना इज अ वेरी अर्बन एलीट एंड पीपल विद मनी यूज्ड टू डू इट। आजकल तो सब करते हैं। तो लेकिन इट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड कि जी बड़ा जश्न जब होता है, जब तब बड़े शहरों में, बड़ी जगहों पे तो पटाखे फूटते हैं। और वरना जो है एक बहुत क्वाइट, वेरी सिमिलर टू व्हाट यू स्पोक अबाउट ईद, क्योंकि ईद जो है, जो दो ईद आती हैं यानी ईद उल जुहा और जो मीठी ईद है, आई थिंक उसमें इट्स अ वेरी सोबर रिचुअल एट वन लेवल। यू गेट अप, यू गो टू the house of prayer to worship God, and you come back, and उसके बाद आप एक दूसरे को बधाई देते हैं। पर उस फेस्टिवल में जो है, आज वो जैसा भी हो, लेकिन ट्रेडिशनली एक it's that kind of an affair, and one of them marks the end of 30 days of fasting. However, with Eid Miladul Nabi, there I think again it takes on a celebratory context, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में, चाहे वो होरी होए रही अहमद जीऊ के द्वार हो, जो मैंने गा के सुनाया था पहले, या बारो घी के दिए ना भैले आमिना के ललना हो, तो व्हेन हुजूर मोहम्मद साहब और पंजतन पाक जब हिंदुस्तान आते हैं, तो वो यहाँ के रंगों में ढल जाते हैं। उन्हें यहाँ इस तरीके से उनको बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ, or not just Muslims, but also many people from Hindu and Sikh communities have written beautiful
कसीदास एंड नात्स एंड इवन मर्सियाज जो मुहर्रम में पढ़े जाते हैं. तो आई थिंक कि ये तो एक गिवन चीज है कि होली और दिवाली के बारे में शायरी करना भी एक ट्रेडिशन बन गई थी, जो हर शायर अपने दीवान में इवन द लाइक्स ऑफ गालिब जिनको शुमार करना जरूरी होता था, और इट वाज कंसिडर्ड द डन थिंग क्योंकि वो एक इंडियन कल्चर का हिस्सा था. तो ये तो एक बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने फूल वालों की सैर चलाया तो उन्होंने रामलीला भी शुरू करी एट एन ऑफिशियल लेवल. तो आई थिंक ये सारी चीजें जो हैं दे वर एंजॉयिंग स्टेट पेट्रोनेज, वेदर इट वाज इवन औरंगजेब, whether it was Babur. I think everybody engaged and understood in their own way. और सूफियों में आप देखें कि जो आपने कही है बात कि मुगल पेट्रनेज के बाद सूफी चिश्ती सूफी जो हैं काफी एलिवेट होते हैं, और उनका जो बहुत उनकी जो सिंपल मकाम्स हैं उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर कैनपीज बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े ऑर्नेट मॉस्क्स बनाए गए और टूम्स बनाए गए, और उन जगहों पे होली अब जैसे मश्क वाले आते हैं, वो मश्क से पानी फेंकते हैं बिना रंग के, या गुलाब के पत्तों को जैसा आपने कहा डाल के आबपाशी करी जाती है. तो आबपाशी और बिना एक्चुअली जो कलर है अबीर और गुलाल वाली होली खेली जाती है. और बाहर स्ट्रीट्स में जो है अक्सर मैंने अजमेर शरीफ में बहुत देखा है, और दरगाह निजामुद्दीन में भी रंगोलियां बनाई जाती हैं, या दरगाह की चौखट पे रंगोली बना दी जाती है, या होली के दिन, या अगर दिए जला दिए जाते हैं दिवाली के दिन. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है. पटाखे तो मुस्लिम्स भी उतने ही फोड़ते हैं जितने हिंदूज फोड़ते हैं. ये तो चाहे 15 अगस्त हो दिवाली हो, दोनों दिन बहुत जोर शोर से एक दूसरे को बधाई देना, मिठाई देना, म्यूजिक के प्रोग्राम्स होना जहां हम जैसे फनकारों को भी बुलाया जाता है. तो बहुत सारी चीजें आज भी हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी खत्म हो रहा है क्योंकि लोगों ने एक शेयर्ड स्पिरिचुअलिटी से काफी गुरेज करना शुरू कर दिया है, और अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइव्स भी उनकी ऐसी हो गई हैं कि वो करें कुछ ना करें पर वो खुद से खुश नहीं है, बहुत बेचैन है, खलिश है लोगों के दिल में. और इसलिए जो है एक दूसरे के साथ भी बड़ा खुश किस्म का बर्ताव होने लगा है. तो आई थिंक इन चीजों को जो है दोबारा सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए ऐसी नशिस्तें बहुत जरूरी हैं जहां आप जैसे ज़हीन और आलिम लोग हम सबको बताएं, और हम जैसे अदना कलाकार थोड़ा गा के याद दिलाएं लोगों को कि क्या वो दौर था. और अभी किसी ने ये कहा कि होपफुली वो दौर कभी वापस भी आएगा. तो मैं थोड़ा सा आपको हजरत बेदम शाह वारसी का वो कलाम जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, उसकी लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, तो मैं वो आपको गा के सुनाता हूँ कि उन्होंने होली का क्या वर्णन किया है और किस तरीके से उनके तसव्वुर में जो है होली मनाई जा रही है. तो तो ये एक जी आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा मैं गा के सुनाता हूँ उसे. धन धन भाग है उनके रे मोरे सजनी, गंजे शकर के गंजे शकर के लाल निजामुद्दीन, गंजे शकर बाबा फरीद का लक़ब है. लाल निजामुद्दीन चिश्त नगर में
फाग रचायो गंजे शकर के लाल निजामो दे चिश्त नगर में फाग रचायो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन प्रेम के रंग में रैनी कटायो प्रेम के रंग में रैनी कटायो धन धन भाग उन केरी मोरी सजनी धन 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 भाग उन केरी मोरी सजनी धन धन भाग उन केरी मोरी सजनी जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो खेलो रे चिश्तियों होली खेलो खेलो रे चिश्तियों होली खेलो ख्वाजा निजामुद्दीन के भेष में आयो ख्वाजा निजामुद्दीन के भेष में आयो लपक झपक और आन अचानक लपक झपक और आन अचानक रंग डारो मुँह पे मधवा पिलायो अपने रंगीले के बेदम वारी अपने रंगीले के बेदम वारी जिन मोहे लाल गुलाल बनायो जिन मोहे लाल गुलाल बनायो ख्वाजा निजामुद्दीन चतुर खिलाड़ी मोरी बैया पकड़ मोरा घुंघटा उठायो खेलो रे चिश्तियों होली खेलो ये तो कन्हैया ख्वाजा निजाम के भेष में आयो। वाह 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 सुभान अल्लाह। ध्रुव साहब क्या आपके पास एक या दो कुछ होगा जो बहादुर शाह जफर का या किसी मुगलिया दौर का कुछ हो? जी 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 मैं पढ़े या हम लोगों ने जो आज पूरी गुफ्तगू की वो ज्यादातर सल्तनत पीरियड की, तो अगर कोई एग्जाम्पल मुगलिया दौर से भी हो जाए। जी रस खान जी ने होली की कविताएं करी हैं। सवैया खेलत फाग लखो पियू सवैया खेलत फाग लख्यो पियू प्यारी तोता मुख की उपमा कहीं दीजे सवैया खेलत देखत ही बनी आवे भल रस खान देखत ही बनी आवे भल रस खान कहा है जो बारना की जो सवैया खेलत फाग लख्यो पीहू प्यारी। इस तरीके की चीजें हैं। और
बहादुर शाह जफर साहब का एक्चुअली काफी सारा कलाम है होली पे, लेकिन कहा जाता है कि वो मतलब तिलक वगैरह लगवाते थे होली पे और बहुत सारी ऐसी चीजें। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो अगर आपके पास कोई कलाम है तो आप उसे हमारे लिए इरशाद फरमा दें, तो वो भी हाँ हो सकता है। मैं असल में उसको ठीक से मैं अदायगी नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूँ। जी प्लीज। शाह जफर के कुछ अशार हैं। क्यों मुंह पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंवर जी दूंगी गारी, हाँ 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 हाँ, आज सकूं मैं कैसे मोसो भाजा नहीं जात, ठांडी अब देखूं मैं बाको कौन जो सुनमुख आत, बहुत दिना में हाथ लागे हो कैसे जाने दूं, आज मैं फगवाता सौ कान्हा फैता पकड़ कर लाऊं, शोख रंग ऐसी धीत ये तखल्लुस था उनका, शोख रंग बहादुर शाह जफर का तखल्लुस था शोख जी। रंग ऐसी धीत लंगर सौ खेले कौन अब होरी, मुख मीदे और हाथ मरोरे करके वो बरजोरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बिल्कुल। verses which I have, ये क्लासिकल बंदिशें भी हैं इस तरीके की जो गाई गई हैं बेस्ड ऑन हिज कलाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी प्लीज और पढ़ें कुछ जी। नहीं, मैंने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, लेकिन अंग्रेजी का इसका मैं जरूर पढ़ दूं ताकि जो लोग मेरा वो तलफ्फुज ना समझ पाए हो वो समझ लें। Why have you squirted me with color, O Kuwarji? I will swear at you. I can't run. I am unable to run. I am now standing here and want to see who can drench me. After many days have I caught you. How can I let you go? I will catch you by your kamarband and play holy with you. वाह वाह वाह, You can play holy with such a mischievous Kanha. My face you have colored and my wrist you have twisted in your playfulness. हाँ 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 This हाँ, is Bahadur Shah Zafar. वाह 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 वाह, तो ये इस बहुत टाइप बहुत के सुंदर। जाहिर है कि बहुत से लोग हैं, और इवन बहादुर शाह जफर के बाद तक ये सारी चीज़ें इस हिंदुस्तान में कायम रहीं, और शायद ये मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये 21वीं सदी है जब ये ट्रेडिशन ज़्यादा मिटा है। 20वीं जी सदी के आखिर तक ये ट्रेडिशन तब भी बाकी रहा, और शायद उसके जिम्मेदार हम लोग हैं कि जो शायद हम अपनी नौजवान नस्लों को ये मैसेज शायद देना भूल गए। अभी एक मैं सवाल देख रहा था, किसी ने ये पूछा कि जो रीजनल वेरिएशंस हैं उसके बारे में भी कोई बात हो जाए, तो जाहिर है कि एक जो रीजनल लेवल पे चाहे बंगाल हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे साउथ इंडिया हो, होली के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जाहिर है कि एक लिमिटेड टाइम था हमारे पास तकरीबन 1 सवा घंटा था जिसमें हम लोगों ने इसकी बात की। अगर कभी वक्त रहा और कभी मौका मिला तो ज़रूर वो सब पहलू भी ऐसे हैं कि जिसके ऊपर रोशनी डालना ज़रूरी है। हर रीजन में एक नया अंदाज, एक अलग अंदाज, कहीं पे बसंत उत्सव के नाम से इस त्योहार को मनाया गया, कहीं किसी नाम से मनाया गया, कहीं यहाँ आप सिर्फ उसकी क्यों बात कर रहे हैं जो सिख ट्रेडिशन है होला मोहल्ला का, उसमें बिल्कुल एक अलग एस्पेक्ट है, वो भी एक तरीके से मिस्टिकली एस्पेक्ट है, लेकिन बहरहाल दैट्स अनदर टेक ऑन होली। तो ये एक वाकई अगर आप इसको देखें तो ये एक नेशनल फेस्टिवल है, और हमको इस नेशनल फेस्टिवल को ये भूल के मनाना चाहिए कि ध्रुव संगरी मना रहे हैं, कि बिलाल चिश्ती मना रहे हैं, कि मना रहे हैं, कि शगुफ्ता सिद्दी मना रही हैं। ये सब हम सब का है, अपने अपने तरीके से इसे मनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना कोई उसमें आमेजिश न कीजिए, बिल्कुल कल्चर उसी का नाम है। हर कुछ दौर में, हर कुछ दिनों के बाद
मैं आपको एक मुसलमान हूँ तो मुसलमानों से एग्जाम्पल दूंगा कि अभी मेरे बचपन तक या जवानी तक ये कह लीजिए कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जाता था, 12 वफात बनाई जाती थी। 12 वफात 12 रबीउल अव्वल नहीं, उसको 12 वफात कहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द पर्शियन इन्फ्लुएंस। नाम ही गायब हो गया और अचानक वो अब ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाने लगा। जैसे खुदा हाफिज गायब हो गया वैसे ही गायब हो गया। जब खुदा हाफिज इतना प्यारा था जिसमें आप किसी से भी आप मुखातिब हो सकते हैं उसके लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजे की बात ये भी है कि दलील लोग ये भी देते हैं कि लोग कहते हैं कि जी खुदा जो है यानी जो खुद से है वो उनकी एक सिफात है, तो आप उनको जो है उससे न पुकार के उनके नाम से पुकारें। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि फिर हम उन्हें रब क्यों कहते हैं, रहीम क्यों कहते हैं। तो फिर तो अगर ऐसा मसला है तो फिर तो हम सिर्फ उन्हें, तो इसीलिए जो जैसा वेदों में कहा है कि the divine is one, but the ones who have knowledge know him by many names. So I think all our festivals and our traditions are like that. It's pointing to the same truth, but we express it in many ways. ध्रुव, परसों हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें इस चीज का तस्करा आया था जिसका आप इशारा कर रहे हैं जी। कुरान में एक चीज दी हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो हर मुसलमान जाने जब कोई बरता है तो लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत हम करते हैं। जी हाँ, इसका माने भूल जाते हैं। हम खुदा से हैं और खुदा में जा मिलेंगे। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। हम मुसलमान हैं तो जा मिलेंगे, हम फला हैं तो जा मिलेंगे। जो इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम है, जी जी जी, और ये दीन हर एक के लिए है और अवामुन्नास से कुरान खिताब करता है और उसी अवामुन्नास के लिए है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा से निकले हैं और खुदा में जा मिलेंगे। ये वही पैगाम है जो किसी जमाने में उपनिषद ने दिया था, सेम पैगाम, बिल्कुल बिल्कुल, जो शंकर देते हैं। ये वही पैगाम है जो सूफिया कराम देते हैं। ये वही पैगाम है जो इस्लाम का पैगाम है। और अगर इसको हम समझ लें तो हम में और आप में किसी में कोई फर्क नहीं है। हम तो एक आजिज़ी एक बंदे हैं, खुदा से निकले हैं, खुदा में जा मिलेंगे। आपस में ये भेदभाव, ये रंगरेलियां या मारो कुश्त करना, ये सारी चीजें जो हैं ये शायद हमको अपने ही मजहब से दूर रख रही हैं। बेशक बेशक। A very good evening with you, Dhruv. Wonderful, Professor साहब, wonderful. I mean, I still hope कि हम आगे चलते रहें, आपसे और सुनते रहें, लेकिन कभी और मौके आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया। एक मैसेज पे आप तैयार हो गए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जाहिर है कि हम आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। अरे 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 अरे, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, इससे ज्यादा खिदमत क्या होगी। और खिदमत हमें दीजिए आपकी करने का मौका, आप प्लीज ऐसा ना कहें, हमें शर्मिंदा ना करें। तो इंशाल्लाह with all these things I'll just wish my countrymen happy festivities once again. There are a lot of festivals, each of them belong to us. आज ही मैंने एक तरीके से होली भी बनाई। मेरी बेटी अभी होली खेल के अभी वापस आई है, रंगी हुई है पूरी। वाह वाह, मुझे उस पर फख्र है। उसका कोई कोना जहन्नुम में नहीं काटा जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड। वो भी वही इंसानी फरीजा दोस्ती का और हम आहंगी का पूरा कर रही है जो हमें आपको करना चाहिए। आज रात में मुसलमान दुआएं पढ़ेंगे, अमाल करेंगे, शब बारात है, और कुछ मुसलमान जो इमाम मेहदी को मानते हैं वो सुबह सुबह जिस वक्त अजान होगी उस वक्त के फिर वो उठ के जागेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और जश्न मनाएंगे कि 12वें इमाम द मेसिया फॉर देम has come back on the earth. With these words, I thank all of you. Thank you, Shagufta.
Thank you, Dhruv. Thank you. Thank you, Professor Rizvi. who came together. Thank you so much, everyone. And before we leave, on a lighter side, enjoy one of the classic songs. And Dhruv, this is not one of yours, but this is from a famous old film. By the way, Dhruv, I was hoping that you're going to sing Range Sari, but आपने सुनाया नहीं, तो ये सुन लेते हैं. अगले बरस. अरे मेरा दिल कहता है कि तुम ऐसा गाना रचोगे कि जिसे सुनकर लोग तो क्या स्वयं गणेश जी भी होली खेलने आएंगे. अरे देखते क्या हो, शुरू करो. धागिन तिनक धिन धागिन तिनक धिन धागिन तिनक धिन. अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अट खेली भरी पिचकारी मारी सरा बोली पनी हारी बोली अरे जा रे हट लटपट ना छूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे. अरे जा रे हट लटपट ना छूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे. मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे. So after this, I think we should all say good night to everybody here. All right, good night, everyone. Enjoy and have a happy Holi. And for those of you who are up tonight, thank you so much for being with us. Good night. Good night. Good night. Thank you. Happy